accept H plus, it will become HCl. So this Cl negative ion will act like a Bronsted-Lowry base. Okay, that means when a Bronsted-Lowry acid gives proton, it becomes base. And when Bronsted-Lowry base accept H plus, it becomes acid. And such an acid-base pair is called conjugate acid-base pair. ओके, तो जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का एसिड है, H प्लस लूज करने के बाद वो बेस बन जाता है, और जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस है H प्लस एक्सेप्ट करके वो एसिड बन जाता है। बेस में ही एसिड छुपा हुआ है, एसिड में ही बेस छुपा हुआ है, एंड सच एन एसिड बेस पेयर इज कॉल्ड conjugate acid base pair. Okay, matlab there is equilibrium. Now you also know in equilibrium system, if forward reaction is fast, backward means slow. If forward reaction is slow, that means backward fast है ना भाई? So in a conjugate acid base pair, if acid is strong, base will be weak, and vice versa. So conjugate base of a strong acid is weak, and conjugate base of a weak acid is strong. So this is Bronsted-Lowry's theory of acids and bases. Now you would have got to know that Arrhenius concept भी यही कहता था कि एसिड वो जो H plus लूज करता है एक्वस मीडियम में, और Bl भी वही बात कह रहा है. That means both Arrhenius concept and Bronsted-Lowry concept about acid is same. But base के बारे में Arrhenius concept था कि base is a substance which gives OH negative hydroxyl ions in aqueous medium. लेकिन Bl का concept क्या है कि base is a substance which can accept H plus. It means base के बारे में दोनों का concept altogether different है. तो क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, अक्सर ही आता है एग्जाम में कि all Arrhenius acids are also Bronsted-Lowry acids, but all Arrhenius bases are not Bronsted-Lowry bases. Now you can explain this. Clear? Now let us do some practice. I am giving you some acids and bases. You have to make their conjugate pairs. For example, H2SO4. H2SO4 is an acid, Bl acid, because it can give H plus. What will be its base? By losing H plus, if we remove H plus, it will become HSO4 negative. Now HSO4 negative is the conjugate base of H2SO4 acid. Okay. And if I write HSO4 here, HSO4 negative here, it is still having an H. It can still lose, still donate, still give H plus. After losing H plus, it will become SO4 2 negative. Okay. So for SO4 2 negative, acid is HSO4 negative. And for HSO4 negative, acid is H2SO4. Means HSO4 is both acid as well as base, but in different contexts. For sulfuric acid, HSO4 negative is a base,
And for sulfate radical, HSO4 negative is an acid. Acidity, basicity, these are relative terms. ठीक है, तो relative है सारा कुछ. Similarly, see water, H2O. Water is having H. Water can give H plus. By losing H plus, it will become OH negative. So here water is an acid, but water can accept H plus also. Is it? By accepting H plus, water will become H3O plus. So here water will be base. Clear? Then ammonia. If ammonia molecule gives H plus, it will be acidic. The base will be NH2 negative. And if ammonia accept H plus, it will become ammonium ion. So ammonia molecule is also acidic as well as basic. For NH2 negative ion, ammonia is acidic. For NH4 positive, ammonia is basic. Clear? So these are conjugate acid-base pairs. Now let us learn third theory of acids and bases, which is called Lewis theory or Lewis concept. It is also called electronic concept because it refers in terms of electrons. According to this theory, an acid is a substance which can accept lone pair of electrons. ठीक है, तो ये थ्योरी बोलती है कि एसिड कौन है, कोई भी स्पीसीज, कोई एटम हो, कोई मॉलिक्यूल हो, कोई पॉजिटिव नेगेटिव आयन हो, जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले, वो एसिड है. अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट वही करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी. ठीक है, दैट मीन्स all electron deficient species are Lewis acids. नोटबुक पे लिख लो कि acid is a substance which can accept lone pair of electrons and all electron deficient species are Lewis acids. For example, देखो अब लुइस का एसिड कौन होएगा, इसकी एग्जांपल क्या होएगी, जैसे H प्लस है, H एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको एक और चाहिए होता है. अगर H एटम ने एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया, वो H प्लस बन गया, अब उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए. इट नीड्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर H प्लस को कहीं से इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मिले तो वो एक्सेप्ट कर लेगा. तो H प्लस इज ए लुइस एसिड. अर्हेनियस कहता है, ब्रोंस्टन लॉरी कहता है कि जो H प्लस दे, लूज करे, वो एसिड है. और ये थ्योरी कहती है कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड है. ठीक है भाई, तो H प्लस इटसेल्फ इज ए लुइस एसिड. ऐसी देखो हमारे पास है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड. आपने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में कि एल्युमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, बिकॉज एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 30, इसकी EC बन जाती है 3s2 3p1. इस पे वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल्युमिनियम के, और Cl के वैलेंस में 7 होते हैं. हर Cl अपना एक एक म्यूचुअल शेयरिंग करता है और कोवलेंट बॉन्ड बन गया. ठीक है, और क्या हुआ कि AlCl3 का मॉलिक्यूल बन गया. हर Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इसमें, बट Al के 3 and 3 6 ही हुए.
central atom Al is still deficient of 2 electrons. So AlCl3 जो है वो ऑक्टेट रूल का फेलियर भी शो करता है. हमने पढ़ा था वहां एक्सेप्शंस में ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस में कि AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है. यहां हम बोलेंगे कि Al को अगर लोन पेयर मिले तो एक्सेप्ट कर लेगा, तो AlCl3 इज ए लुईस एसिड. सिमिलरली BCl3 और तमाम ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे रेडिकल्स नेगेटिव पॉजिटिव आयंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे आर लुईस एसिड्स. क्लियर? नाउ लेट अस लर्न अबाउट bases. Just opposite. A Lewis base is a substance which can donate a lone pair of electrons. Clear? तो जो स्पीसीज, जो मॉलिक्यूल, एटम, रेडिकल इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर डोनेट कर सकता है, वो क्या होएगा? लुईस का बेस. अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा? वही करेगा जिसके पास पूरे हैं, फालतू हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच है. तो ऑल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर लुईस बेसिस. क्लियर? देखो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव वाटर मॉलिक्यूल. वाटर इज ए वी शेप्ड मॉलिक्यूल. यू ऑल नो. To complete octet, oxygen has shared its 2 unpaired electrons with H atoms. सबका octet complete हो गया, H2O molecule बन गया. और O के ऊपर there are 2 lone pairs of electrons. ये electrons वेले बैठे हैं. They are not involved in bonding. They are lone pairs. So this molecule is electron rich. अगर कोई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वाला इस लोन पेयर को शेयर करना चाहे तो इट कैन. वाटर कैन डोनेट. सो वाटर इज ए लुईस बेस. सिमिलरली अमोनिया मॉलिक्यूल पिरामिडल शेप. आपको याद होगा कि N के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो N इज हैविंग ए लोन पेयर. इट इज आल्सो ए लुईस बेस. क्लियर? So this is electronic concept. Lewis concept is electronic concept. Acid is a substance which can accept lone pair. Base is a substance which can donate lone pair. Acids are electron deficient species. Bases are electron rich species. Okay. अब एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन. और हनीस कॉन्सेप्ट कल पढ़ा आपने, उसमें हुई लॉस ऑफ वाटर और साल्ट बना, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. ब्रोंशियोलोरी अभी पढ़ा, उसमें क्या होता है? एसिड के अंदर ही बेस छुपा होता है, बेस के अंदर ही एसिड छुपा होता है. और इसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को लोन पेयर डोनेट करेगा, देन यू नो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होने से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड. ठीक है? लेट अस सी. फॉर एग्जांपल ये वाटर का मॉलिक्यूल है. ठीक है? तो वाटर के मॉलिक्यूल के पास 2 लोन पेयर है. ये लुईस का क्या है? बेस, इलेक्ट्रॉन रिच है. और ये H+ ले लेते हैं. H+ को 1 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए. तो अगर H+ इस वाटर के पास आता है तो ये अपना लोन पेयर उसको डोनेट कर दे. ये कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड. अब जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज तीनों H पे आएगा. 3 बॉन्ड में से 1 बॉन्ड कोऑर्डिनेट डेटिव, 2 बॉन्ड कोवलेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगी रेजोनेटिंग. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव. It is called hydronium ion. Similarly, अमोनिया. अगर H+ अमोनिया के पास आ जाए तो अमोनिया से भी ये डोनेशन ले सकता है. तो यहां भी ये लुईस का एसिड हो गया, ये लुईस का बेस हो गया.
मतलब लुईस के एसिड और बेस में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड। जैसे ये AlCl3 मॉलिक्यूल है, यहां पे हम अमोनिया ले लें तो अमोनिया का लोन पेयर इसको डोनेट हो सकता है। दिस इज इट। ओके, तो अब तक आपने तीन थ्योरीज पढ़ ली एसिड्स और बेसिस की। द थ्योरीज आर अर्हेनियस थ्योरी, लुईस थ्योरी और ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। ठीक है, लेट अस सम अप। अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एसिड कौन? which gives H plus in acidic medium. Bl theory के accordingly acid कौन? which gives H plus to a base. ठीक, और लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एसिड कौन? which accepts Lp, lone pair of electron. ठीक, बेस के बारे में अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंगली बेस कौन? which gives hydroxyl ion. Bl थ्योरी बेस कौन? which accept H plus from an acid. और लुईस के अकॉर्डिंगली बेस कौन? which donates lone pair. ठीक है, तो ये हमने इसका एक समअप बना लिया टू अवॉइड कंफ्यूजन। और अब देखो ये सेम है दोनों, तो वी कैन से कि अर्हेनियस एसिड्स आर आल्सो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड्स, बट अर्हेनियस बेसिस आर नॉट ब्रोंस्टेड-लॉरी बेसिस। इसका आंसर अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, देन Bl थ्योरी कहती है कि बेस कौन? जो H प्लस को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट करे मतलब उसको, उसके साथ दोस्ती कर ले, उसके साथ बॉन्डिंग बना ले। लुईस कहती है कि बेस कौन? जो लोन पेयर डोनेट करे। जैसे अमोनिया, अब अमोनिया के पास लोन पेयर है, ठीक है, अमोनिया ने लोन पेयर डोनेट कर दिया। जब अमोनिया ने लोन पेयर को डोनेट किया है तो उसने H प्लस को एक्सेप्ट ही तो किया कि आजा भाई बैठ जा मेरे पास, है ना? तो मतलब जो लोन पेयर डोनेट करता है वो H प्लस को एक्सेप्ट करता है। इज इट? सो एक और क्वेश्चन बन गया कि all Bronsted-Lowry bases are also Lewis bases, but Bronsted-Lowry acids are not Lewis. तो ये दो आपको हाईलाइट कर दिए, ये दो क्वेश्चंस आपने नोट करके लिखने हैं आप। ठीक है, तो कल का लेक्चर और आज का लेक्चर, इन दोनों लेक्चर्स में हमने स्टडी किया अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, तीन थ्योरीज होती हैं, ये तीनों की समरी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।